In this video, we will deal about the polar plot, which is the basic of a Nyquist plot. So while plotting a polar plot, we have to draw a graph or a plot between the real of GSHS, that is open loop transfer function, and imaginary part of open loop transfer function, right? So first important concept while drawing it is whenever actually the polar plot is drawn in order to find the stability. Okay, stability of closed loop transfer function, very important, stability of closed loop transfer function using open loop transfer function, right? Now we have a GSHS as 1 upon s plus 1. So okay, first step is find the magnitude. While finding the magnitude, 1 upon s plus 1, write s as j omega. First step, s is equals to j omega, then we will find the magnitude. So 1 upon j omega plus 1. So magnitude will be under root of, you can either write 1 or you can take this one outside. I will take it outside, 1 plus omega square. Okay, this is the magnitude. Now coming to the angle, we know whenever j omega is on in the denominator, no, it is going to create minus 90 effect. So minus 90. Okay, minus 90, or what we can say, minus, in other terms, minus tan inverse omega by, see here, omega by 1. Okay, now we have to draw the conditions. First condition is omega equal to 0, then what is magnitude and angle. See, whenever we are plotting something, we have to plot some points. So first point is omega 0, and second point is omega infinite, and the third point is omega in between. Okay, so omega equal to 0, तो मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं. पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 0 रखना है यहाँ पर, तो 1 आ गया मैग्नीट्यूड. एंगल निकालना है तो ओमेगा को 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 इज 0. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो मैग्नीट्यूड देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, एंड एंगल देखिए गिरा tan इनवर्स तो माइनस 90. दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जे ओमेगा की कोई भी टर्म है तो वो हमें माइनस 90 का इफेक्ट क्रिएट करने वाली है. अब हम इसे प्लॉट करेंगे. इससे एक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं कि इसके बीच में ना कई बार हमें वी हैव टू डील विद द पॉइंट्स इन बिटवीन 0 to infinite. ओके, सो सी, minus 90 minus something, if we are going to put omega as 1 2 3 something like this in between of 0 to infinity, we are going to get negative of angle. Okay, so angle will always be negative. This is very important. We have to find the points in between of the two magnitude, that is 0 and infinite, and magnitude will lie in between. If we will talk about this magnitude, it will lie in between, it was started with 0, or we can say 0 to, ओके, 0 to 1. ठीक है, अब हम आराम से प्लॉट बना सकते हैं इसका. ठीक है, ये देखिए, ये हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, पहला पॉइंट आपने क्या देखा, ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट. तो यहाँ से देखते हैं, एकदम फर्स्ट स्टेप से हमें अपना मार्क करना स्टार्ट करना है ताकि हमें कोई भी डाउट नहीं हो. ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसीजर है. तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड क्या है, 1, मतलब मैग्नीट्यूड शिफ्ट है, पॉजिटिव है दोनों, तो यहीं पर आएगा मैग्नीट्यूड, मतलब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, ओमेगा 0. ओके, और ये ओरिजिन है ना, वो जनरली ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट का पॉइंट होता है. तो देखिए, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना है, मैग्नीट्यूड 0, एंगल कितना है, माइनस 90. देखिए, ये वाली चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा. 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. अब इसी को, ये मैं किस डायरेक्शन में चली, देखिए इस डायरेक्शन में. अगर मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला कौन सा डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो कितना आएगा, माइनस 90. ओके, 180 माइनस का, 270 माइनस का, और 360 माइनस का. अब देखिए क्या बोला गया है, जब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है तो एंगल कितना है, माइनस 90. बहुत ध्यान से देखिए,
इसको कोई ऐसे भी बना सकता है कि इसको ऐसे भी बना सकता है, पर हमें कहाँ जाना है, -90 की साइड। -90 किधर है, इधर। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कंटूर है, सॉरी हमारा जो प्लॉट है, पोलर प्लॉट, वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये एंगल है क्योंकि 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये एंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम सीखे कि -90 किस वाली जगह पे, नीचे वाली जगह पे, ठीक है। और हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि एंगल्स हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और पहला पॉइंट प्लॉट हो चुका है। इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हमें GSHS गिवन है, GSHS कितना गिवन है हमें, 1/s+1 s+2। हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले मैग्नीट्यूड, जैसे हमने सोल्यूशन लिख कर स्टार्ट, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, सबको पहला स्टेप क्या था, सबको j ओमेगा के टर्म्स में पुट करना था, तो 1/j⍵+1। फिर ब्रैकेट में क्या आ रहा था, 2 + j⍵, ठीक है। अब फिर से मैग्नीट्यूड, अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं था, ये हमने यहाँ पर s = j⍵ पुट किया, ओके। ये पहला स्टेप होता है। ये कभी भी ये स्टेप अगर हम लोग लिखते जाएंगे तो हमें थोड़ा ईजी पड़ता है, और फिर एक कुछ ट्रिक्स भी होती है, वो भी देख लेंगे। तो ये होता है अंडर रूट में ω² + 1, फिर नेक्स्ट जाता है हमारा ω² + 2। ये आ गया क्लियर यहाँ तक। फिर हम एंगल की बात करते हैं। देखिए ये एंगल, अभी हम एंगल और आगे सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखिए तो ये फिर से j⍵, मतलब एक चीज़ तो पता चल गई, माइनस हमें देगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में, अगर मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अगर यहाँ न्यूमरेटर के टर्म में ना अगर j⍵, तो वो 90 डिग्री देता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के में j⍵ टर्म हो तो वो -90 डिग्री देता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग उसी टर्म में लिख लेते हैं। एंगल क्या होगा, -tan−1। ये मैं बार बार ओमेगा यार क्या लिख रही हूँ ये भी बता देती हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 10, लाइक अगर x + jy है, ठीक है, तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है tan−1 इमेजिनरी अपॉन रियल, इसीलिए मैं इसको बार बार ऐसे लिख रही हूँ, ओके। तो -tan−1 ω/1 माइनस, यहाँ पर लिख देती हूँ नेक्स्ट, -tan−1 j⍵/2, ठीक है, ω/2। इस तरीके से ये पूरा काम हो चुका है। अब वही फर्स्ट स्टेप ω = 0 करिए, तो मैग्नीट्यूड देखिए ω फिर 0, यहाँ मेरे को आराम से 0 रखना है, तो 1, और ये √2 आ गया, तो 1/√2 आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। या 1/, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, देखिए यहाँ पर 4 होगा, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये 1/2 आएगा मैग्नीट्यूड। अब एंगल क्या, अच्छा एंगल ω0 पुट करेंगे तो tan−1 0 0 0, तो एंगल मेरा 0 डिग्री आ गया। सेकंड कंडीशन ω∞ पुट कर लेती हूँ, मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है मुझे, 1/∞ 0 0 मिल गया। एंगल क्या मिलने वाला है मुझे, एंगल देखते हैं, इन्फिनिटी पुट करूँगी तो tan−1 माइनस, मतलब tan∞ क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 90 90 180 -180। देखिए क्या सही चीज़ आई है, -180 आ गया। अब इससे दो अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि यहाँ पर रियल लिखना है और इमेजनरी, और GSHS भी लिख सकते हैं, कई बार रियल और इमेजनरी लिख के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, ω0 और इनफाइनाइट, ये तो मेरे को पता है, ओरिजिन पे हम लोग जनरली ω∞ लेते हैं। अब क्या है मेरे पास 0, फिर पॉजिटिव एंगल आ रहा है, इन बिटवीन देख लेते हैं। अगर इन बिटवीन मैं बोलूँ ना, तो हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव ही आएगा और 180 से कम ही आएगा। और मैग्नीट्यूड देख लीजिए, जैसे एंगल तो पक्का नेगेटिव आएगा, 0 मतलब 0 से इनफाइनाइट अगर हम लोग चले ना, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा, नेगेटिव, सॉरी एंगल हमारा नेगेटिव आएगा, तो उसका टेंशन है ही नहीं। अब देख लीजिए यहाँ से चालू करते हैं, मैग्नीट्यूड कितना है, 1/2, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, ये अभी मैंने नेगेटिव एंगल सिर्फ प्लॉट कर दी, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि मेरे को नेगेटिव में मिल रहा है सबको 0 90 डिग्री 180 डिग्री किसके, माइनस के, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से तो चालू कर दिया, देखिए मैं 1/2 से चालू कर दी, शिफ्ट कर दी, ये ओमेगा मेरा 0 वाला पॉइंट है। लेकिन यहाँ देखिए इस पॉइंट पे जब ओमेगा इनफाइनाइट है, ओमेगा इनफाइनाइट ओरिजिन वाले पॉइंट पे होता है, तो एंगल कितना है, -180, मतलब एक्चुअली मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, देखिए यहाँ तक तो मैं गई, ठीक है, मैं 190 तक चली गई, लेकिन मेरे को 90 की कोई नीड ही नहीं है, मेरे को तो 0 वाला मैंने प्लॉट यहीं पर कर दिया है, 0 वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड इनफाइनाइट वाला कहाँ पर है, 180 पे, तो मैं 90 से चली 180 तक पहुँची, ये
ये मेरा सही प्लॉट बना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वही GSHS हमें गिवन है कितना, 1/s+1 s+2 s+3 s+3, ठीक है। देखिए GSHS गिवन है 1/s+1 s+2 s+3। अब वही मैग्नीट्यूड वाला पहला गेम सॉल्यूशन, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ से करते हैं 1/j⍵+1, ठीक है, ये s=j⍵ पे मैं पुट कर रही हूँ, फिर 2 + j⍵, और यहाँ पर उसी तरह 3 + j⍵, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 1/√ω² + 1 ω² + 4 और ω² + 9, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया। एंगल भी मैं थोड़ा देख लेती हूँ ताकि मैं आराम से सॉल्व कर पाऊँ। देखिए एंगल तो देख लेते हैं एक बार, -tan इनवर्स ओमेगा आएगा पहला इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए, फिर आएगा -tan इनवर्स, ये क्या आएगा ω/2, और तीसरा आएगा -tan इनवर्स ω/3, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमने पहला स्टेप क्या देख रखा था कि हमें ω=0 पुट करना है, ठीक है। ओमेगा अगर =0 पुट करना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं यहाँ पर जब डालूँगी 0 को तो मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, तो 0, अब देखिए क्या मिल रही है मुझे एक्चुअली वैल्यू, अगर मैं मैग्नीट्यूड कैसे करूँगी तो मेरा वैल्यू मिल रही है √ में 1/4 और इंटू में 1/9, ऐसे कर सकती हूँ मैं, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअली में हमें मुझे कितनी मिल रही है, 9 का 3 हो जाएगा 3 6, तो 1/6 वैल्यू मिल रही है। और एंगल कितना मिल रहा है, एंगल देख लेते हैं, 0 0 0 0। ओमेगा इनफाइनाइट पे कितना मैग्नीट्यूड मिल रहा है, 1/∞ 0, और एंगल कितना मिल रहा है -270। -270 क्यों, देखिए ओमेगा यहाँ पुट कीजिए इनफाइनाइट 90 90 90 माइनस के साथ है -270। इसी में एक चीज़ पहले प्लॉट कर लेते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो वही रियल इमेजिनरी वाला लिख के, अब हमने क्या सीखा था कि ओमेगा जब 0 था तो हमारी क्या वैल्यू थी 1/6, तो सिंपल ओमेगा 0 से पॉजिटिव में 1/6, एंगल जो था 0 डिग्री। अब कितना है ओमेगा इनफाइनाइट पे कितना है 270 डिग्री, ठीक है। तो -90 -180 और ये है माइनस का 270, ठीक है। तो कहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से चल के तो मैं बस 180 तक आई, फिर चल के 270 तक आए, तो ये मेरा एंगल है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, जैसे हम लोगों ने 1/s+1 का बनाया था तो वो कैसा आ रहा था, देखिए ऐसे, ठीक है। जैसे एक और पोल ऐड हुआ, मैं बोल सकती हूँ ओपन लूप पोल ऐड हुआ है, तो s+2 हुआ तो मेरा कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। एक और ऐड किया मैंने s+3 तो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। अगर मैं s+4 और कर दूँगी तो मेरा क्या शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पोल इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है, तो वो -90 का एंगल में शिफ्ट प्रोवाइड करता है। पहले यहाँ एंगल कितना था 0, s+1 के केस में एंगल कितना था यहाँ तक में 0 था। अब फिर गए तो ये -90 का करके, फिर तीसरे में -180, फिर चौथे में -270, ठीक है। मतलब पहले वाले जो 0 बोल रहे हो वो एक्चुअली -90 था, फिर दूसरा वाला 180 था माइनस का, और तीसरा वाला 270 था माइनस का। और अगर एक और मैं अगर s+4 भी ले लूँगी ना तो मैग्नीट्यूड में पता है कहाँ चेंज आएगा, जैसे यहाँ पर इधर देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या बनाया है 1/6 का, अब वहाँ पर मैग्नीट्यूड में क्या आता, यहाँ तक तो था, देखिए ओमेगा, ये ω² + 9 था, वहाँ एक और हो जाता, मान लीजिए मैं s+4 ऐड करती तो ω² + 16, तो जो मेरा था ये 1/6 था ना, ये 1/24 हो जाता, और कुछ नहीं है। और ये पोल इधर शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, इसको हटा दीजिए, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये वाला पोल है बस यहाँ, सॉरी ये वाला हमारा पोलर प्लॉट बना है। यहाँ मान लीजिए 1/24, मैं एक बार वापस बना देता हूँ, ये कितना आया हमारा, यहाँ से चलेंगे रियल इमेजिनरी सेम है, ये प्लॉट बनेगा, ओके, ये सारी गलती यहाँ पर, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा किस पॉइंट से 1/24, तो ये हमारा प्लॉट बन रहा है, ओके। यहाँ पर आएगा कितना पे, -360 पे।
तो ये एक शॉर्ट ट्रिक का मेथड है जो भी हम कैलकुलेट, जो हम एक्चुअली अगर कोई पोल ऐड हो जाए तो जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो हमें इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ती है। वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, 1/s, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर GSHS मुझे 1/s दे रखा हो तो मैं क्या करूँ। तो मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर होगा 1/j ओमेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/ओमेगा, और इसका एंगल क्या है, देखिए एंगल क्या है, सिंपल माइनस का tan इनवर्स। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर जे ओमेगा नहीं दिया, रियल पार्ट क्या हुआ 0, अगर सिर्फ जे ओमेगा दे रखा, रियल नहीं दे रखा, तो देखिए ओमेगा/0 और ओमेगा/0 क्या होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है -90। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो 1/s है, मतलब अगर कोई भी हमारा ओरिजिन पोल, ठीक है, ओरिजिन पे पोल आए तो उसका एंगल डिपेंड ही नहीं करता, वो जो भी प्लॉट है उसको -90 डिग्री से शिफ्ट कर देगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसी पे क्वेश्चन देखेंगे, और मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा 0 रखेंगे सपोज, तो 1/0 इन्फिनिटी, और ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, ठीक है। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा GSHS, ठीक है, GSHS ये है 1/s s+1, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए, ये मैंने तो पहले ही बता दिया कि 90 डिग्री का शिफ्ट देगा, और अभी हमने 1/s+1 का कैसे बनाया था, ये कितना था हमारा 1, और ये था ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ ओमेगा इक्वल टू 0। हमने बताया ना, जैसे ही हमारा एक s होगा वो 90 डिग्री का शिफ्ट देगा, ठीक है। तो 0 90 -90, तो अब ये यहाँ बनेगा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। और एक और चीज़, ये जो है जब भी हमारा ओरिजिन पोल होता है तो वो इन्फिनिटी पे लेके चले जाता है, मतलब अब ये इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। मैं पूरा मेथड बताती हूँ, करके बताती हूँ, ताकि हम लोग को कभी डाउट ना हो। जैसे मैग्नीट्यूड, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 1/j ओमेगा+1, यही है। तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा √ओमेगा² +1, ठीक है। तो एंगल देखूँ तो इसका एंगल कितना होगा, यहाँ से देखते हैं। इस वाले पॉइंट पर अगर हमको एंगल निकालना है तो पहला तो -90 दे ही रहा है, ये वाला j ओमेगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक के बाद ओमेगा इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है 1/ओमेगा √ में ओमेगा² +1। तो अब पुट करते हैं हम लोग ओमेगा इक्वल टू 0 को, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आया इन्फिनिटी, और एंगल कितना आया, एंगल क्या था हमारा -90 माइनस tan इनवर्स 0, तो कितना आ गया -90। और अब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो हमारा सबसे पहले ये देख लेते हैं एंगल कितना है -180 डिग्री, -180 डिग्री, और मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा 1/∞ 0। तो बाकी जो पॉइंट है इसी रेंज के बीच में लाई करेंगे, ज़ीरो। मैग्नीट्यूड इसका क्या है हमारे पास इनफाइनाइट और 0, इसी के बीच में हमारे 0 टू इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड लाई करेगा, और एंगल सेम रहेगा। तो देखिए क्या क्या पता चला कि जो पहला पॉइंट है ओमेगा इक्वल टू 0 पर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इन्फिनिटी, यहीं पर आ रहा है, ठीक है, और एंगल क्या है -90, और दूसरे में मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 0, और एंगल क्या है -180। मतलब ये क्या है मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट, तो मैं इनफाइनाइट से स्टार्ट करती हूँ, और मैं इसी क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि मेरा -90 -180 किस में लाई कर रहा है, -90 -180 यहाँ लाई कर रहा है, तो -90 से स्टार्ट करूँगी, मेरे को कहाँ पर जाना है 180 पे, तो ये इस तरीके से मैं 180 पे चली गई। और ये यहाँ पर ना ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, देखिए ओमेगा इनफाइनाइट यहाँ पर इस टाइम पे 0 है, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इस वाले टर्म में जब मैंने 0 रखा है ना 1/0, तो ये इनफाइनाइट ही है, और लेकिन यहाँ जब मैं बात करती हूँ ना, तो इस वाले पॉइंट को, इस वाली चीज़ को जो मैंने यहाँ सीखा है, इसको एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है कि हमने सीखा था कि S+1 यहाँ वाला जो था,
क्योंकि यहाँ पर 1/s s+1 है। तो अगर शॉर्ट ट्रिक देखें s+1 वाली, तो वो s+1 का तो हमने सीख लिया कि यहीं पर है। अब एक s ऐड हुआ है, ठीक है, तो जैसे s ऐड होता है तो वो 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है, तो ये इस शिफ्ट में आ गया और ओमेगा इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे आ जाएगा। जो ये 1 था ना यहाँ पर, वो इस जगह पर आ जाएगा और उसका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि हमें GS और HS गिवन है 1/s² s+1। देखिए, एक तो मैग्नीट्यूड फिर से निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/, ये s² का तो j ओमेगा है तो ओमेगा ही आएगा, जैसे ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना, और इसका आ जाएगा अंडर रूट में 1 + ओमेगा², ठीक है। एंगल कितना आएगा आराम से देख सकते हैं, 90 देता था, एक और ऐसा है तो -180 देगा और -tan−1 ओमेगा। ये भी क्लियर हो गया। ओमेगा को 0 पुट करना है, ओमेगा को 0 पुट करते हैं आराम से अपना। तो ओमेगा को 0 पुट करने पे मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट आ रहा है, एंगल जो है हमारा कितना आ रहा है -180, क्योंकि 0 है ना, और इनफाइनाइट पुट करेंगे ओमेगा को इनफाइनाइट, तो 1/∞ मैग्नीट्यूड 0 और एंगल कितना होगा, देखिए एंगल कितना है, इस वाले पॉइंट पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो -270, क्योंकि tan−1 -90 होता है तो -90 -180 270। अब द रियल और इमेजनरी तो देख सकते हैं, ये हमारा रियल, ये हमारा इमेजनरी, ठीक है। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू 0, इनफाइनाइट, एंगल -180 है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये -90 होता है, -180 होता है, और क्या बोला है 270 तक जाना, मतलब इस पॉइंट से, क्योंकि देखिए s² है तो ये क्या इन्फिनिटी से आ रहा होगा और कहाँ जाएगा, यहाँ ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे। इस पॉइंट पे जब ये इधर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो क्या है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा 0 है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा ओमेगा 0 है, और वहाँ पर से इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है और कहाँ जा रहा है, ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट -180 पे, और जब यहाँ स्टार्ट किया सेकेंड वाला इनफाइनाइट पे, वो कितना एंगल है -270, इसीलिए ये एंगल देखिए कौन सा -270, तो हमारा यहाँ पर आया है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है GS HS इक्वल टू 4/s s+1 s+2। इस 4 के ऐड होने से हमारी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक तरह का कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वही मैग्नीट्यूड निकालिए आप, तो 4 का 4 रहेगा, कुछ चेंज होगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा² + 1, ये हो जाएगा ओमेगा² + 2। ये तो हम अभी तक सीख चुके हैं। अब इसमें क्या करना होता है, एंगल निकालना होता है। तो एंगल देख सकते हैं हम लोग आराम से, ये वाला -90 का दे रहा है, ये वाला कितना देगा -tan−1 ओमेगा, ये वाला कितना देगा -tan−1 ओमेगा/2। ये भी क्लियर हो गया। ओमेगा इक्वल टू 0 देखते हैं, उस पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और एंगल क्या आएगा -90। सिमिलरली ओमेगा अगर इनफाइनाइट हो जाए तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड 0 और एंगल -90 -90 -270। तो ये वाला प्लॉट बस अब हमें क्रिएट करना है, वही रियल और इमेजनरी। तो देखिए कहाँ कहाँ जाएगा, -90 to 270 माइनस का। तो अब देखिए क्या है, s है, और जब भी s होता है तो हमारा प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों यहाँ से स्टार्ट की मैं, क्योंकि इस टाइम पे मेरा -90, तो मैं -90 से लेके गई, और जब मेरा इनफाइनाइट को रीच किया तो क्या था 270, तो मैं यहाँ एंड कर दी इसको, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला एक बार चेक कर लेंगे वापस, ठीक है। अब थोड़ा एक नया क्वेश्चन है, GS HS। अब मैं क्या दे रखा है s+2 डिवाइडेड बाई s+4, वही स्टेप j⍵+2 डिवाइडेड बाई j⍵+4। तो ये मैग्नीट्यूड क्या देगा ω² + 2 अपॉन में ω²+4 का अंडर रूट, और इसको क्या लिख सकते हैं
2/ω² + 1 डिवाइडेड बाई 4/ω² + 1। ठीक है, इसको ऐसे किया क्योंकि जब इनफाइनाइट पुट करूँगी तो ईजी पड़ेगा मेरे लिए। 2/∞ क्या होता है 0, तो 1/1 आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल देखते हैं तो वो क्या है, tan इनवर्स ω/2 माइनस tan इनवर्स ω/4। देखिए अगर 1/2 माइनस 1/4 करें हम लोग, 1/2 माइनस 1/4 तो कितना आएगा हमारे पास 2/4 यानी 1/2, है ना। तो इधर देखिए ω/2 माइनस ω/4, मतलब ये हमेशा हमारा पॉजिटिव टर्म रहने वाला है, ये एंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिंपली ω = 0 करें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारा, यहाँ 0 रखिए, √2/4। ओके, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है बार बार। 4/16 होगा ना यहाँ पर, 4/16, मैं इसका स्क्वायर नहीं की, ये थोड़ा मिस्टेक है। तो 4/16 यानी कि ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/2। ठीक है, उसी तरह अगर एंगल निकालो मैं इस पॉइंट पे 0 पे, तो कितना आएगा 0 0। ठीक है, ओमेगा इनफाइनाइट करो तो देखिए एंगल भी 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि इस 90 माइनस 90 तो ये 0 हो गया, है ना। और मैग्नीट्यूड एट इनफाइनाइट कितना है 1। तो अब प्लॉट बना लेते हैं, रियल इमेजिनरी। तो अब देखिए ओमेगा 0 पे कितना है 1/2। ठीक है, और ओमेगा इनफाइनाइट पे कितना है 1। अब 1/2 1, अब देखिए कोई भी एंगल 0 से ज़्यादा -90 नहीं है, -180 नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पहले बार सॉल्व किया तो मुझसे भी गलती हुई थी, मैं इसको नीचे ले गई, और ये गलती है क्योंकि ये -90 है और ये 0 है, तो ये -90 में है ही नहीं, तो हमारा प्लॉट जहाँ से स्टार्ट हो वहीं तक एंड होगा। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ 0, 0 पे कितना मैग्नीट्यूड था 1/2, तो मैं 1/2 से स्टार्ट की और ओमेगा इनफाइनाइट पे एंड की, तो एंगल का एरो देखिए, एरो कैसे जाएगा दिस साइड। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझसे भी गलती हुई है, तो ये नीचे नहीं हम बना सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच।